च दिखाया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी आया करो जी कदी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी Thank you very much, ladies and gentlemen. I think you're going to enjoy what is coming up next. Thank you. We're all awaiting him. So am I. The history between India and Belgium is one that stretches centuries, from the exchange of trade and culture to supporting each other in times of need. This next presentation is a tribute to the great history of our two nations, with a particular focus on the immense contribution of Indian soldiers on the battlefields of Belgium in World War I, right through to the people who polish and shine our diamonds, joining the great cities of Surat and Antwerp. Ladies and gentlemen, we present to you Diamonds, a piece which has been specially composed for today's events. Please welcome back to the stage Naveen Kundra, Vasudha Raturi, and on violins, Hans Vermes and Shama Vermes. Enjoy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light, so shine bright tonight. You and I, beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful. जब देखता हूँ तेरी तरफ मिलता है सुकून तुझसे तुझसे तुम आँखों में हो एक मेरी आँखों में बसा है तेरा चेहरा बस तेरा तुम आँखों में हो एक I knew that we'd become one right away. Oh, right away. So shine
too wide. So one night, we're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ladies and gentlemen, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, बस वो कुछ ही क्षणों में आने वाला है. In a few minutes, we will be joined by the Prime Minister of the largest democracy in the world, Shri Narendra Modi ji. Before that, let's watch a short video showing his priorities for India. लगन से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की. बेटी को बचाए, हो बेटी को पढ़ाए, स्वच्छ भारत करके दिखाए, हर दिल की रखी बात है. ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है. भ्रष्टाचार बंद कराया, मुद्रा बैंक से रोजगार बढ़ाया, अब उन्नति के उजियारे से अंधियारे की मौत है, अंधियारे की मौत है. ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है. आपदा में ना एक पल गवाया, किसानों का दुख है बटाया. बीमा पेंशन से खुशहाली लाए, ये समय की आवाज है, समय की ये आवाज है. ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है. जनधन से धन पाया, रसोई में ईंधन आया, कम ब्याज पे कर्ज है मिलता, सुधरे सबके हालात हैं. ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है. रोजगार को दिया बढ़ावा, किसानों में उत्साह जगाया, युवा देश की युवा उमंगे, नई पीढ़ी का साथ है, नई पीढ़ी का साथ है. ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है. महिलाओं को दिया हौसला, रक्षा किया फैसला. कानून के साथ है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है. कानून उनके साथ है, ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है.
and gentlemen, please can I ask us all to be upstanding as we observe 1 minute silence in remembrance for the victims of the recent terrorist attacks in Brussels. Thank you, ladies and gentlemen. Now please remain upstanding for the national anthems. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Sri Narendra Modi as we invite him to the podium. Namaste.
मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे लोकगीतों के आशीर्वाद पाने का अवसर मिला है। हम विदेश में जाते हैं तो राजदूतों को तो मिलते हैं, लेकिन लोकदूतों को मिलना एक सौभाग्य होता है। और सरकार में अगर राजदूत है तो आप भारत के लोकदूत हैं, जो भारत के सांस्कृतिक परंपरा को, भारत को दुनिया के सामने अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से परिचित करवाते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे सभी ये हजारों लोकदूतों को मेरे नमस्कार। गत सप्ताह ब्रसेल्स में एक भयंकर आतंकवादी घटना घटी। जिन लोगों को अपने प्राण प्रिय स्वजन गंवाने पड़े हैं, उन परिवारों के प्रति मैं आदरपूर्वक अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। यहां के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं अपने आप में एक लंबे अरसे के बाद इतना बड़ा कांड इस धरती को सहना पड़ा है। आतंकवाद कितना भयंकर है, कितना निर्दयी है, ये अब दुनिया भली भांति जान गई है। गत वर्ष दुनिया के 90 देश किसी न किसी आतंकवादी घटना के शिकार हुए। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और दूसरी तरफ सैकड़ों मां बाप हैं जो आंसू बहा रहे हैं क्योंकि उनके संतान आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं है। आतंकवाद किसी भूभाग पर चुनौती नहीं है। आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है और इसलिए समय की मांग है कि जो भी मानवता में विश्वास करते हैं, दुनिया की उन सारी शक्तियों ने एकत्र आकर के आतंकवाद से मुकाबला करना होगा। आतंकवाद जितना भयंकर है, उससे ज्यादा
चिंता इस बात की हो रही है कि इतने बड़े संकट के बावजूद भी हजारों लोगों, निर्दोष लोगों के मौत के बावजूद भी दुनिया इस विकराल रूप को पहचानने में कम पड़ रही है और उसके कारण मानवतावादी शक्तियों में बिखराव नजर आता है। कभी गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, वो जाने अनजाने में आतंकवाद को एक अलग प्रकार की ताकत पहुंचाता है। और इसलिए समय की मांग है कि दुनिया इस आतंकवाद की भयानकता को समझे। भारत 40 साल से आतंकवाद के कारण परेशान है। युद्ध में भारत ने जितने जवानों को नहीं गंवाया, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मरे हैं, शहीद हुए हैं। और भारत जब दुनिया को चीख चीख करके कहता था कि आतंकवाद निर्दोषों के जीवन का दुश्मन बन चुका है, मेरा स्वयं का अनुभव है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमें समझाती थी कि आतंकवाद नहीं है, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन जब धरती पैरों के नीचे से हिलने लगी, तब दुनिया को पता चला कि आतंकवाद क्या होता है। नाइन 11 ने दुनिया को झकझोर दिया। तब तक दुनिया ये मानने को तैयार नहीं थी कि भारत कितने बड़े संकट को झेल रहा है। लेकिन भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं। और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने दुनिया के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, अलग अलग सांप्रदायिक धाराओं से जुड़े हुए नेताओं से बात की, और उनको मैंने समझाया कि आतंकवाद को रिलीजन से डीलिंग कर देना चाहिए। पहले कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है। पिछले दिनों भारत में लिबरल इस्लामिक स्कॉलर का एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। दुनिया के कई देश के इस्लामिक स्कॉलर आए।
सूफी परंपरा से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक स्वर से कहा कि आतंकवादी जो इस्लाम की बात करते हैं वो इस्लाम नहीं है, ये तो अन इस्लामिक बात करते हैं। जितनी बड़ी मात्रा में इस प्रकार का स्वर उठेगा, उतनी तेजी से जो नौजवानों का रेडिकलाइजेशन हो रहा है उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ बम, बंदूक और पिस्तौल से आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। हमें समाज में एक माहौल पैदा करना पड़ेगा। ये देश का दुर्भाग्य देखिए, दुनिया का दुर्भाग्य देखिए, मानवता का दुर्भाग्य देखिए। यूनाइटेड नेशन युद्ध क्या होता है, युद्ध में किसने क्या करना चाहिए, युद्ध से क्या संकट होते हैं, युद्ध को रोकने के क्या तरीके होते हैं, यूएन के पास जाइए, सब चीज लिखी पड़ी मिलेगी। लेकिन आतंकवाद के लिए पूछो तो अभी यूएन को भी पता नहीं है कि क्या आतंकवाद होता है और कैसे वहां पहुंचा जाए और कैसे निकला जाए। क्योंकि उनका जन्म युद्ध के भयानकता में से पैदा हुआ और इसलिए युद्ध के दायरे के बाहर सोच नहीं पा रहे। ये नए युग की नई चुनौती है, मानवता को चुनौती है, उसको आंकने में भी विश्व का इतना बड़ा संगठन अपना दायित्व निभा नहीं पा रहा है। भारत ने सालों से यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया है कि आप एक रिजोल्यूशन पारित कीजिए जिसमें डिफाइन कीजिए कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी देश है, कौन आतंकवादियों को मदद करते हैं, कौन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, कौन सी बातें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा तो लोग उससे जुड़ने से डरना शुरू कर जाएंगे, हटने का प्रयास करेंगे। मैं नहीं जानता हूं यूनाइटेड नेशन कब करेगा, कैसे करेगा, लेकिन जिस प्रकार के हालत बन रहे हैं, अगर इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं करेगा तो वो संस्था भी इरेलेवेंट होते हुए देर नहीं लगेगी। अगर समय के साथ चलना है, चुनौतियों को समझना है और 21वीं सदी को सुख शांति और चैन की जिंदगी जीने के लिए तैयार करना है तो विश्व के नेतृत्व ने भी जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी और अब जितनी देर करेंगे उतना नुकसान ज्यादा होने वाला है। आज मैं दिन भर यहां के नेताओं से मिला, यूएई के नेताओं से मिला, विस्तार से कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन हर बात के सेंटर पॉइंट आतंकवाद रहा। आतंकवाद ने कितना झकझोर दिया है ये मैं सब नेताओं से आज मिल रहा था तो मैं अनुभव कर रहा था। और वो फिर मुझे धीरे से कहते थे, आप लोग तो 40 साल से जेल रहे हैं, काफी अनुभव है आपका। आज पूरा विश्व आर्थिक संकटों से भी गुजर रहा है। दुनिया के अच्छे से अच्छे देशों की इकोनॉमी आज हिल चुकी है। ऐसे समय सारी दुनिया एक स्वर से कहती है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, हर कोई एक स्वर से कह रहे हैं
कि दुनिया में अगर आज कोई आशा की किरण है, कोई लाइट ऑफ होप है, तो वो सारी दुनिया एक स्वर से कह रही है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। भारत आज विश्व में जो बड़ी इकोनॉमीज है, उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में आज उसने दुनिया में अपनी जगह बना दी है। और ये नसीब के कारण नहीं हुआ है। मोदी के कारण भी नहीं हुआ है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण हुआ है। दुनिया भर में फैले हुए हिंदुस्तानियों के कारण हुआ है। वरना जो देश 2 मौसम 2 वर्ष लगातार बारिश कम हुई, सूखा पड़ा, और उतना कम था तो बीच बीच में ओले गिरे। ईश्वर ने भरपूर कसौटी की है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है। अगर दिशा सही हो, नीतियां स्पष्ट हो, और इससे भी बढ़कर के नीयत साफ हो, तो भारत जैसे देश को कोई रोक नहीं सकता है। भारत आगे बढ़ सकता है। कभी कभार बहुत सी चीजें हैं जो शायद आपको टीवी पर देखने को न मिलती हो, अखबार में पढ़ने के लिए न मिलती हो, कभी कभार नरेंद्र मोदी ऐप पर दिखाई देती हो, या सोशल मीडिया में दिखाई देती हो। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता चलेगा कि कैसे बदलाव आ रहा है। चीजें इतनी हैं कि मुझे कागज की मदद लेनी पड़ेगी। वैसे मैं थोड़ा कम मैं सिर्फ 2015 का हिसाब दे रहा हूं आप लोगों को, और मैं मानता हूं लोकतंत्र में जनता जनार्दन को हिसाब देना ही मेरा दायित्व है। और मैं अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक मानता हूं। तो आपके सेवक के नाते मेरा दायित्व बनता है मैं आपको हिसाब दूं। हमारे देश में शुगर केन, गन्ना किसानों का 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपया बकाया रहना, ये आम बात है। मिल वाले कहते हैं कि चीनी बिकी नहीं, वो उसको पैसे देते नहीं। अब बताइए 25-30 हज़ार करोड़ रुपया किसान का बाकी रहेगा तो जाएगा कहाँ? इस बार दुनिया में चीनी के दाम गिर गए, चीनी का उत्पादन बहुत हो गया। भारत से चीनी बाहर जा नहीं रही थी, भारत में दाम बढ़ नहीं रहे थे। गन्ना किसानों का क्या होगा? हमने एक निर्णय किया
कि हम इथेनॉल बनाएंगे, और हमने एक नियम कंपलसरी किया कि हमारे पेट्रोलियम के अंदर 5% इथेनॉल कंपलसरी मिक्स करना होगा। - 2015 में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में इथेनॉल का पैदावार हुई। हमारे देश में मैं जब प्रधानमंत्री बना तो मुझे मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां आती थी। तो मुख्यमंत्री की चिट्ठी स्वाभाविक है, मुझे खुद को पढ़ना होता है। और चिट्ठी में एक ही विषय होता था कि मोदी जी, यूरिया की बड़ी कमी है, यूरिया फर्टिलाइजर, यूरिया भेजिए। हर मुख्यमंत्री यही चिट्ठी लिखता था। कभी खबर आती थी कि यूरिया खरीदने के लिए रात रात किसान बेचारे दुकान के बाहर क्यू लगा के खड़े हैं। कभी खबर आती थी कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, यूरिया लेने के लिए गए थे, लाठीचार्ज हो गया। अभी मुझे हमारे कुछ एमपी मिले, बोले साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरिया के लिए कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस वर्ष मुझे 2015 में एक भी मुख्यमंत्री ने चिट्ठी नहीं लिखी कि यूरिया नहीं मिला है। देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन 2015 में हुआ और संकटों से हमने बाहर निकाला। हमारे देश में अमीरों की सरकारें जब होती हैं तो अमीरों को गैस सिलेंडर मिलना, और पहले तो एक ज़माना ऐसा था कि गैस सिलेंडर लेना है तो एमपी के यहाँ लोग जाते थे कि साहब ज़रा सिफारिश करो ना, गैस सिलेंडर मिल जाए। 2015 में एक वर्ष में गरीबों को सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने किया। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार देश के नागरिकों से अपील की थी कि अनाज की कमी है, हम लोग एक टाइम खाना छोड़ दें। और यहाँ कई पुराने जमाने के लोग बैठे होंगे। पूरा हिंदुस्तान सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खाता था अनाज बचाने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री की शब्द की वो ताकत थी। मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, कहाँ लाल बहादुर शास्त्री और कहाँ एक चाय बेचने वाला। लेकिन मैंने देश के सामने एक रिक्वेस्ट की, जो संपन्न लोग हैं उन लोगों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए, उन्होंने सरेंडर करनी चाहिए। एक सिलेंडर पर 250 रुपया के लिए क्या रखा है, छोड़ दो। आपको जान करके खुशी होगी, मेरा इतनी सी बात, और वो भी मैंने कोई बहुत बड़ा कैंपेन नहीं किया था, ऐसी बातों बातों में बता दिया था। हिंदुस्तान में 90 लाख लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी। जब मैं कहता हूं ना देश प्रगति कर रहा है, उसका कारण 125 करोड़ देशवासी हैं, ये उसका उदाहरण है। 90 लाख लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी, और 90 लाख लोगों ने, उसमें कोई बहुत बड़े अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य रिटायर्ड टीचर, उसको लगा मोदी जी ने कहा है मुझे छोड़ देना चाहिए,
और हमने कहा अगर आप छोड़ते हो तो मैं उस गरीब मां को एक गैस सिलेंडर दूंगा जो मां लकड़ी के चूल्हे जला करके धुएं में रोटी पकाती है, बच्चों को खिलाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मां चूल्हे में लकड़ी जला करके अगर खाना पकाती है तो एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जाता है। 400 सिगरेट्स। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मां की तबीयत का क्या हाल होता होगा। और उस घर में छोटे छोटे बच्चे उस धुएं के अंदर कैसा गुजारा करते होंगे। इस एक बात ने मुझे बड़ा पीड़ा की और मैंने तय किया कि गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर क्यों ना हो। और उसका परिणाम है कि गत 1 वर्ष में आजादी के बाद सबसे ज्यादा गरीबों को गैस सिलेंडर दिए। इस बार बजट में हमने एक संकल्प घोषित किया है कि आने वाले 3 वर्ष में 5 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवार जिनके घर में लकड़ी का चूल्हा है उनको गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा और पहला कनेक्शन का खर्चा सरकार भुगतेगी और धुएं में से उन माताओं को बाहर निकाला जाएगा। दो 2015 में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन हुआ। मैं जो सबसे ज्यादा बोल रहा हूं ना, इसलिए लिख करके रखो कि मैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा बोल रहा हूं। पहले खबर आती थी कोयले में इतने हाथ काले हुए। पता है ना क्या आता था? पता है ना? कोयले के कारोबार का मालूम है ना क्या आता था? इस बार सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन 2015 में हुआ। 2015 में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ। दो 2015 में हिंदुस्तान के बंदरों पर जो गुड्स आया, सामान आया, वो सबसे ज्यादा सामान बंदरगाह पर उस माल की ढुलाई हुई। सबसे ज्यादा मतलब व्यापार बढ़ा होगा तब माल आया होगा, गया होगा। 2015 में पहले हमारे यहां बंदरगाह पर स्टीमर आता था तो 3 दिन 4 दिन तक उसको इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि किनारे पर बैठे हुए लोगों को जब तक खुश नहीं करता था। आपको तो मालूम है ना, जब हिंदुस्तान जाते हो तो खुश कैसे करते हो। तीन दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह स्टीमर अंदर खड़ा है, किनारे पर आता नहीं, माल उतरता नहीं। कितना खर्चा होता था। गत वर्ष कम से कम समय में बंदरगाह पर स्टीमर आने और जाने में समय कम से कम लगा। सारी बिचौलिए पद्धतियां बंद हो गई। स्टीमर आता था, माल उतरता था, दूसरा माल भरता था, स्टीमर चल पड़ता था। किस प्रकार से बदलाव आ रहा है देश में। 2015 में देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ। मतलब पशु भी सुखी हुए होंगे, गाय भैंस बकरियां भी तो खुश हुई होगी। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, जो वोट नहीं देते उनका भी भला करते हैं।
आजादी के बाद 1 वर्ष में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। क्योंकि मेरा बात है कि हिंदुस्तान में रेलवे ये सिर्फ यातायात का साधन नहीं है। हिंदुस्तान में रेलवे हमारी आर्थिक गतिविधि की रीढ़ है, स्पाइन है। अगर उसको बल दिया जाए, उसका एक्सपेंशन किया जाए, उसको मॉडर्नाइज किया जाए, तो देश में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। 2015 में हाईवेज, राजमार्ग सबसे ज्यादा एक साल में ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर के कॉन्ट्रैक्ट अगर दिए गए 2015 में दिए गए। 2015 में गाय भैंस ने दूध तो ज्यादा दिया ही दिया, लेकिन 2015 में सबसे ज्यादा कार का भी उत्पादन हुआ। गाड़ियां, मोटर व्हीकल्स सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में 2015 में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। सॉफ्टवेयर, आईटी यहां होंगे काफी। 2015 में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुआ भारत से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में कुछ नियम, कुछ आदतें, कुछ तरीके, उसके कारण दुनिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग आते हैं उसमें हम बहुत पीछे रहे हैं। 1 साल के भीतर भीतर उसमें सुधार लाए और 12 अंक हमारी परिस्थिति में सुधार हो गया। ये पहली बार हुआ है और आने वाले दिनों में और ज्यादा आपको नजर आएगा। देश आजाद होने के बाद 2015 में विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व 2015 में हुआ। देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 के कालखंड में, और ये कहकर के हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ये कहकर के हुआ था कि ये बैंकों पर गरीबों का अधिकार होना चाहिए और इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आजादी के 60 साल के बाद भी हिंदुस्तान के 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने बैंक के दरवाजे देखे तक नहीं थे। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि बैंक के दरवाजे उसके लिए भी खुल सकते हैं। हमने आते ही एक अभियान चलाया कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है बैंकिंग, उससे जुड़ना चाहिए। और आज मुझे खुशी है, करीब करीब सभी नागरिक आज बैंक व्यवस्था से प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट से जुड़ गए। 21 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले, 21 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम हुआ होगा। और हमने ये करना था तो हमने एक नियम बनाया था कि 0 बैलेंस से भी बैंक अकाउंट खुलेगा। नहीं तो सामान्य बैंक का नियम होता है 50 रुपया 100 रुपया रखोगे तभी बैंक अकाउंट खुलता है, क्योंकि वो स्टेशनरी का भी तो खर्चा होता है। हमने कहा नहीं, गरीब हैं, 0 अमाउंट से खोला जाएगा। आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, मैंने इस योजना के तहत एक बहुत बड़ी चीज देखी और वो है गरीबों की अमीरी। अमीरों की गरीबी तो बहुत बार नजर आती है, लेकिन गरीबों की अमीरी की तरफ नजर बहुत कम जाती है। सरकार ने कहा था 0 अमाउंट से बैंक बैलेंस 0 होगा तो भी अकाउंट खुलेगा, लेकिन मेरे देश के गरीबों की ताकत देखिए कि उन्होंने
ये सोचा कि नहीं भाई मुफ्त में कैसे ले सकते हैं, हमारे देश का गरीब ये सोचता है। और उसका परिणाम ही आया 34,000 करोड़ रुपए, 34,000 करोड़ रुपया इन गरीबों ने बैंक में जमा करवाया। बैंक से लेकर के भाग लेने वाले एक है और बैंक में रखने वाले दूसरे हैं। अमीरों की गरीबी क्या होती है और गरीबों की अमीरी क्या होती है, ये साफ नजर आता है दोस्तों।